الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تو کل ہم پڑھ رہے تھے الم نشرح لک صدرک، یعنی کھول دیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مراد دو ترجمے ہوتے ہیں. ایک تو کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کا سینہ مبارک اسلام کی اور، یا صحیح طور سے جو شق صدر ہو گیا تھا آپ سے دو مرتبہ، جب جبریل علیہ السلام نے آپ کا دل جو ہے وہ پاک کر دیا، دل مبارک جو ہے وہ صاف کر دیا. تو اس کے بعد وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. وَوَضَعْنَا، وضع بولتے وضعنا، وضع جب کے بعد، وضع کے بعد جب عن آتا ہے نا، مطلب ہوتا ہے ریموو کرنا. وضع ہو گیا رکھنا، وضع عن ہو گیا ریموو کرنا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ، اور ہم نے آپ سے ریموو کر دیا. عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے ریموو کر دیا آپ کا برڈن، جو آپ کو دباؤ تھا، بوجھ تھا، وہ ہم نے آپ سے اتار دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کا جو کمر ہے وہ توڑ دیا تھا. جس نے آپ کا کمر جو ہے وہ، مطلب ویٹڈ اپون، جس نے تیرا تیری پیٹھ توڑ دی تھی. الذی انقض، جس نے آپ کا جو کمر تھا، ظہر بولتے کمر کو، ٹھیک ہے. الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی جو پیٹھ ہے اس پہ ویٹ ڈالا تھا، یا اس کو اس نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی. میں دیکھوں گا اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے اس ترجمے میں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا آپ سے، ہم نے رکھ دیا آپ سے. عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ سے آپ کا وزر بولتے ہیں کس کو؟ بوجھ کو. ٹھیک ہے. جنہیں یہ الذی انقض ظہرک، الذی انقض ظہرک، اس سے مراد کیا ہے؟ انقض کا مطلب ہو گیا توڑ دیا. جس نے توڑ دیا تھا آپ کے بیک کو اس برڈن نے، تو وہ ہم نے آپ سے ریموو کر دیا. تو برڈن کو، اسٹریس کو ریموو کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. جو انسان سے بوجھ ختم، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جو گناہوں سے انسان کو ہے نا بوجھ دل پہ آ جاتا ہے، وہ دور کون کرتا ہے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بھی گناہوں کا بوجھ دور کرتے اور ہمیں پاک بنا دے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے مرفوع کر دیا آپ کا ذکر. ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا لک ذکرک، آپ کا جو ذکر ہے ہم نے بلند کر دیا، تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا. ٹھیک ہے. اسے یہاں پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. مثلا نماز میں ہم پڑھتے کیا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں بھی پڑھتے کیا؟ یہی. اور بہت سے مقامات پہ ایسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. گزشتہ کتابوں میں بھی آج کا ذکر کیا گیا تھا، بائبل میں، ٹھیک ہے، تورا میں، انجیل میں. یا ایسے ہی جو ہے فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر کیا گیا. ٹھیک ہے. اور آپ سے کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نا، یہ بھی سمجھنا ہے انسان کو. یا اس ٹائم پہ آپ دیکھیں نا، کتنے زیادہ مشہور ہے آپ کی جو ذات مبارک ہے، وہ کتنی زیادہ مشہور ہے دنیا کے اندر، ہے نا. اس کی کتاب بھی کسی کی مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے نا، اس نے لکھے 100 ویسے لوگ جنہیں بہت انفلوئنس ڈالا دنیا کے اندر. اس نے لکھا ہے نمبر 1 پہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر حساب سے آگے تھے. ٹھیک ہے. سوشلی، پولیٹیکلی، اسپریچولی، مورلی، انٹلیکچولی. اس نے پروو بھی کیا اپنی کتاب میں. اس نے پھر بعد میں لایا نیوٹن 200 نمبر، پھر لایا اس نے کون؟ آئنسٹائن. پھر ایسے ہی موسیس لایا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ انبیاء نے بہت ڈالا ہوتا ہے نا اثر دنیا کے اندر، اس لیے اس نے وہ بھی لائے بہت سارے اپنی کتاب میں. ہوتا نا ہسٹورین بڑا سا ایک. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے ایسے. یہ آپ دیکھیں مسلمان کتنے ہیں دنیا کے اندر، ہے نا؟ 2 بلین، 2 بلین مسلمان ہیں. کبھی کبھی تو مسلمان نماز پڑھتا ہی ہے زندگی میں، جمعہ پڑھتا ہی ہے کچھ نہ کچھ. تو اس کا مطلب 2 بلین لوگوں نے منہ سے بولا ہے محمد کا نام، اور سنا کتنے لوگوں نے ہوگا پھر؟ سوچے آپ خود ہی. 21، مطلب پاپولیشن کا 25% ہے، انہیں نام لیا ہے آپ سسم کا. اس کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. پھر سے بے شک، ڈبل تاکید، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور اس کا جو ہے نا فلوسافیکل میننگ کیسے ہو جاتا ہے؟ انسان نہیں کر پائے گا ویلیو کمفرٹ کو وداؤٹ سفرنگ. اگر مجھے سفرنگ نہیں آ رہی ہے نا، تو میں کبھی ویلیو نہیں کروں گا کس کو؟ کمفرٹ کو. دیکھیے فار ایگزامپل، میں آج سے کبھی بیمار نہیں ہو گیا تھا، تو مجھے مزہ نہیں آئے گا زندگی میں جب میں صحت یاب ہوگا. اگر میں اس ٹائم پہ صحت یاب ہوں، اور میں یاد آ رہا ہوں کہ ایک ٹائم تھا جب میں بیمار ہوا کرتا تھا، اور الحمدللہ جو صحت یاب ہوں، تب جا کے میں خوش ہو جاؤں گا. کیونکہ انسان کہتا ہے تب ویلیو کمفرٹ کو جب سفرنگ آ گئی ہوتی ہے ایک بار. پھر سمجھ آتی ہے امپورٹنس آف کمفرٹ.
کہ कंफर्ट में रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है। कोई इंसान जेल में होगा 10 साल तक, उसको जेल से बाहर निकालेंगे, तब समझता है वो इंपॉर्टेंस घर में बैठने की, ना कि जेल में बैठने की, अकेले में। कोई फैमिली नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। तब वो समझता है आज़ाद ज़िंदगी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर वो जेल में नहीं होता, जैसे हम अलहमदिल्ला जेल में नहीं हैं, हम घर में आराम से बैठे होते, तो हमें उतनी ज़्यादा नहीं होती है कदर घर वालों की। लेकिन अगर अल्लाह ताला बच्चा है, मैं जेल में जाऊंगा, तो जो मेरे घर वाले हैं मुझे वो बहुत याद आ जाएंगे उस टाइम पे। अल्लाह ताला बच्चा है जेल में जाने से। फ़इज़ा फ़रग़त फ़नसब, तो बस जब आप फ्री होंगे, फनसब तो आप स्टैंड अप हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए। अगर आप फ्री होंगे तो आप स्टैंड अप हो जाइए, यानी कि इबादत में आप खड़े हो जाइए। जब आप फारिग होंगे तो आप इबादत पे मेहनत करिए। फन सबसे यहाँ मुराद क्या है? आप स्टैंड अप हो जाइए किस में? इबादत के अंदर। ठीक है, आप इबादत में जद्दोजहद करिए, आप इसमें तो मेहनत कर, हाँ, इन सब तो मेहनत कर। व इला रब्बिका फरगब, और आप अपने रब की तरफ ही दिल लगा दीजिए, आप अटेंशन भी अपने रब की तरफ ही जो है डाल दीजिए, सारा अटेंशन अल्लाह ताला की ओर ही। व इला रब्बिका फरगब। अब हम तफसीरें पढ़ेंगे ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, हम चलेंगे ऐसे ही अपनी, क्यों आप खुद ही पढ़ सकते हैं, हमें कुरान पढ़ना है तफसीर तर्जुमे के साथ, असली था ना वही इंपॉर्टेंट। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पढ़ेंगे तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है वह तीन व जैतून, वाउल कसम, हाँ, मैं कसम दिखाता हूँ तीन की। तीन बोलते हैं फिग को, ना इंजीर जो खाते हैं। वह तीन व जैतून, मुझे कसम है इंजीर की और जैतून की, ऑलिव की। ठीक है। वह तूरी सीनीन, और मुझे कसम है तूरी सीनीन की, माउंट सिनाया इसको बोलते हैं, माउंट सिनाया। ठीक है। ये कहाँ पे ना, शायद इजिप्ट के साइड से, इजिप्ट के साइड से ये वो तूरी सीनीन, और मुझे कसम है माउंट सिनाए की। अल्लाह ताला कसम दिखाता है इस पहाड़ की, जहाँ पे मूसा अलैहि सलाम को तौरात नाजिल की गई, और जहाँ पे रब हम कलाम हो गया मूसा अलैहि सलातो वसलाम के साथ। उसके बाद वहादल बलदिल अमीन, और मुझे, और इस सिटी की जो जो सिक्योर सिटी है, जो अमीन, जो अमन वाला शहर है, मुझे इसकी भी कसम है। अल्लाह ताला दिखाता है कसम। देखिए पहले यहाँ पे कौन सा कस्टम आ गया था, वह तीन व जैतून, एक तो तीन का और जैतून का, पता है मुफस्सिरीन क्या बोलते हैं इसके बारे में? वो बोलते हैं जो ना ये इलाका, शायद जो तूरी सीन का इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, किसके? फिग के ट्रीज और जैतून के ट्रीज वहाँ पे आसपास बहुत सारे हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे आ गया ना ये और पता ही नहीं कि जन्नत की मेवे भी है ये। जो यहाँ पे आ गया ना ये वहादल बलदिल अमीन, उससे मुराद क्या है? उस बलदुल अमीन से मुराद है मक्का मुकर्रमा। ठीक है, जहाँ पे क़िताल की इजाज़त हमें नहीं दी गई है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है। हम चलेंगे आगे। उसके बाद अल्लाह ताला कसम दिखाने के बाद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान, बतहकीक हमने पैदा किया इंसान को, हमने पैदा किया इंसान को, फ़ी अहसन तक़वीम, बेस्ट मोल्ड के अंदर, बेहतरीन सूरत में हमने इंसान को पैदा कर दिया। अहसन, अहसन तरीके में, अहसन प्रोपोर्शन में इंसान को हमने पैदा किया। बेहतरीन तकवीम, सूरत हमने इस इंसान को अदा कर दी। जो है तकवीम बोले साख्त को, साख्त ना, साख्त ढांचा जो होता है, साख्त होती है। ठीक है। तो बेहतरीन साख्त में, सांचे में, मोल्ड में इंसान को रब ने बना दिया है। ठीक है। और नहीं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इसको बोलते हैं जवाबुल कसम। ठीक है, कसम का जवाब है। है ना, मुंह अच्छे से अपनी जगह पे होता है, मुंह दांत अपनी जगह पे, इसमें वही लिखा है सब कुछ, मैं बोला था पिछली बार ना, पता ही है वो सब चीज़ें। इसे यहाँ पे लिखा है कि हर अहम अजू दो दो बनाए हैं। हर अहम अजू क्या है? दो दो, है ना। हाथ दो होते हैं, आंखें दो होती है, नोस्ट्रल्स दो होते हैं, दांत देखना, विजन लाइन डालेंगे तो बराबर हो जाएंगे सेपरेट दांत, है ना। इंसान बायोलिटिकली सिमेट्रिकल है। इसने वही लिखा है यहाँ पे। और इसने यहाँ पे लिखा है कि रब ने इंसान को क्या दिया है? अक्ल तदब्बर दिया है, फ़हम हिकमत दी है, सम और बसर दिया है, इंसान सुनता है, देखता है, कुव्वतें दी है। ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दरअसल ये इंसान अल्लाह की कुदरत का मजहर और उसका परतू है। इंसान जो है ना, वो अल्लाह ताला की कुदरत का पता है क्या है? मजहर है, मजहर। हमें देखनी है अल्लाह की कुदरत, इंसान देखेंगे हम, इसको बोलते हैं अल्लाह की कुदरत। इतने सारे इंसान है, अब देखिए बहुत कम की आवाज़ हो जाती है मैच। अब सोचिए दुनिया में इतनी सारी आवाज़ है, 8 बिलियन आवाज़ दुनिया में है। अब सोचिए दुनिया में इतनी सारी शक्लें,
ورنہ क्या, हर एक बस नाक होती है, आँख होती है, मुंह होते हैं, इतनी सारी शक्लें होती है, सब पहचान पाती है अलग है, वो है, ये शाम है, ये हाजिम है, ये हमारे है, वो है ये है। ठीक है, ऐसा होता है मसला। सोच रहे हैं, और हमें बोलेंगे तुम बनाओ शक्लें ऐसे, हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे हम, विदाउट किसी को देखे ऐसे बनाएंगे, ना बना पाएंगे। तो अल्लाह ताला क्या है, मुसव्विर। अब बोलेंगे कोई वो बनाते हो उनके, वो तब बनाते जब सामने होता है कोई, ऐसे ना बनाएंगे वो दिमाग में कुछ भी ऐसी, जब सामने शक्लें हैं रब ने बना दी है, तब जाके वो ऐसा कर पाते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है हदीस में, पता क्या आ गया है, इन अल्लाह खलक आदम अला सूरती, अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा कर दिया है। इसमें बहुत इख्तलाफ है ना, इसका तर्जुमा कैसे करेंगे। कुछ बोलते हैं जो ना यहाँ पे इन अल्लाह खलक खलक आदम अला सूरती ही, यहाँ पे जो नहीं ही, ये मुराद है अल्लाह, मुराद है आदम की ओर, यानी कि अल्लाह ने आदम को पैदा किया आदम की सूरत पे। कुछ तर्जुमा ऐसे करते हैं। देखिए से यहाँ पे लिखा है इंसान की पैदाइश उन तमाम चीज़ों का एहतिमामी अहसन तकवीम है, इसका जिक्र अल्लाह ने ये तीन किस्मों के बाद फरमा दिया है। देखिए हमें अक्ल किसने दी है, दी ना अक्ल वाले नहीं, वरना हमें कौन अक्ल देता। कोई बोलता है मुझे यूनिवर्स ने अक्ल दी है, कोई बोलेगा एवोल्यूशन जब हो गया, आहिस्ता 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 एवोल्यूशन हो गया, और इंसान को आहिस्ता आहिस्ता क्या आ गई, थिंकिंग आ गई, सोचने लगा, रैशनैलिटी इसमें आ गई, ये कैसे पॉसिबल है। ऐसे बोलते हैं वो ग्रेजुअल प्रोसेस था, चलो मान लिया ग्रेजुअल प्रोसेस भी है, लेकिन फिर भी कैसे इंसान के अंदर जो है अकल आ गई। ठीक है। इसमें शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगी, एक मिनट। हाँ, मतलब कैसे इंसान के अंदर आ गई क्या रैशनैलिटी और कॉन्शियसनेस। ठीक है। सोच रहे हैं ना हमें कैसे आ गई रैशनैलिटी, उस मैटर से जो नॉन रैशनल है, मैटर के पास रैशनैलिटी नहीं है, तो हमें कहाँ से आ गई रैशनैलिटी। तो सीधी सी बात है, हमें रैशनैलिटी आ गई होगी एक रैशनल बीइंग से जो कि अल्लाह ताला है। हमें कॉन्शियसनेस कहाँ से आ गई है, कॉन्शियस बीइंग से जो कि अल्लाह ताला है। हम मोहब्बत कैसे कर पाते हैं, जब हमें मोहब्बत करने वाली ज़ात ही मोहब्बत डालती है अंदर। अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं, बंदे भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन इन दोनों के मोहब्बत को कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है कंपैरिजन करना, क्योंकि लई से कम शैउन, अल्लाह जैसा कोई चीज़ है ही नहीं। देयर इज नथिंग लाइक हिम, वो समी अल बसीर। अल्लाह ताला जो है वो हर कोई चीज़ सुनने वाला और देखने वाला है। बंदा भी देखता है, लेकिन अल्लाह का देखना क्या है, कामिल, बंदे का देखना क्या है, नाकिस। बंदा भी सुनता है, बंदे का सुनना क्या है, नाकिस, अल्लाह का सुनना क्या है, कामिल। इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। थोड़ा समझना है यहाँ पे, देखिए एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या होता है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मतलब होता है जो डिवाइन एट्रीब्यूट्स है, जो अल्लाह ताला की सिफात है, वो बंदों को देना, या जो बंदों के एट्रीब्यूट्स है वो अल्लाह को देना। कोई बोलते हैं जैसे हिंदुइज्म में है, बाकी बाकी फोक रिलीजन्स में उन्हें बनाएंगे भगवानों की मूर्तियाँ, है ना, वो इंसान जैसे होते हैं, और इंसान के हाथ होते हैं, कान होते हैं, आंखें होती हैं, मुंह होते हैं, उन्हें वैसे बनाया पूरा ढांचा इंसान का, बोलते हैं वो भगवान है हमारा। तो इस्लाम इसके खिलाफ है, इस्लाम के एंटी एंथ्रोपोमॉर्फिक। हम बोलते हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है बिटवीन क्रिएशन एंड क्रिएटर, बिल्कुल वो अलग है। ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, बंदे भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला रहम करते हैं, बंदे भी रहम करते हैं, अल्लाह ताला सुनता है, बंदे भी सुनते हैं, अल्लाह ताला देखता है, बंदे भी देखते हैं, अल्लाह ताला जो है वो प्लान करते हैं, बंदे भी प्लान करते हैं। लेकिन ये समझना है कि अल्लाह का प्लान करना बंदे के प्लान करने में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अल्लाह के सुनने में बंदे के सुनने में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अल्लाह के देखने में बंदे के देखने में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अल्लाह ताला हर जगह पे हर कोई चीज़ देखता है, अल्लाह ताला हर चीज़ सुनता है, हर जगह पे हर चीज़ सुनता है। तो अल्लाह ताला की जो सिफात है वो कामिल है, बंदे की जो सिफात है वो नाक़िस है। जो नहीं, ये मुअतज़िला जो है, मुअतज़िला, मुअतज़िला जिनको बोलते हैं रैशनलिस्ट, हालांकि वो रैशनलिस्ट नहीं है, उनको बोलते हैं रैशनलिस्ट। उन्होंने कहा यही कि वो बोलते हैं अल्लाह ताला ना सुनता है, न देखता है, न वो जो है न वो देखता है, न वो सुनता है, न वो रहम करता है, न वो मोहब्बत करता है। वो क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि अल्लाह ताला सुनता है, देखता है, मोहब्बत करता है, तो ये इंसान भी तो मोहब्बत करता है, देखता है, सुनता है, तो ये कंपैरिजन हो रहा है, हालांकि उनका दिमाग खराब हो गया है। हम बोलते हैं बंदे का सुनना अल्लाह के सुनने में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन सिफात तो माने ना अल्लाह की कि वो समी है, वो बसीर है, वो तो मान लेंगे। अब ये बोल रहे हैं ज़्यादा रैशनलिज्म बोल रहे हैं, हालांकि रैशनलिज्म है ही नहीं ये चीज़। सीधी सी बात है, हमें कैसे आ गई कुव्वत है, हमें कैसे आ गई कॉन्शियसनेस, जब कॉन्शियस बीइंग है कोई। हमें कहाँ से आ गई रैशनैलिटी, जब रैशनल बीइंग है कोई। हम बोलेंगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स बताइए कि हमें 2+2 कितना होता है, 4 बोल सकती है नहीं। हमें किसने समझाया ये चीज़, एक ज़ात ने जिसने हमें कॉन्शियसनेस रैशनैलिटी दी है।
क्या यूनिवर्स समझ पाए कि पर्पस होना चाहिए जिंदगी का, कोई ना कोई अल्टीमेट पर्पस, देयर शुड बी सम पर्पस ऑफ लाइफ? क्या यूनिवर्स मैटर समझ पाएगा कि मॉरल्स क्या होते हैं, मॉरल्स, मोरालिटी किसको बोलते हैं, समझ पाएगा? एथिक्स किसको बोलते हैं? नहीं। ये हमें कहाँ से आ गई मोरालिटी? एक मॉरल बीइंग से, जिसने मोरालिटी दी है, जिसने ये मॉरल सेट किए, जिसने मॉरल लॉज बनाए हैं। तब जाके हम बोलते हैं कि गैबत करना गलत है, चोरी करना गलत है, जिना करना गलत है, शराब पीना गलत है, क्योंकि मोरालिटी किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। ठीक है। ये समझना है जरूरी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के बारे में, क्योंकि ये होता है मसला यहाँ पे। जो मुअतज़िला है, जहमिया है, वो कुफार है। क्या है वो कुफार है। मुअतज़िला जहमिया, क्योंकि वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं वो देते हैं बंदों के एट्रीब्यूट्स। वो बोलते हैं कि अल्लाह ताला सुनता नहीं है, क्योंकि बंदे भी सुनते हैं। हम बोलते हैं अल्लाह भी सुनता है, बंदे भी सुनते हैं, लेकिन कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं दोनों के बीच में। कोई कंपैरिजन करना ही नहीं है। अब रखिए चार चीज़ें याद। न करना है पहली बात, न तकीफ करनी है, तकीफ। ठीक है। तकीफ मतलब पता क्या होता है? हाउनेस बयान करना, हाउनेस। हाउनेस बयान करना, ये बोलना कि कैसे हो रहा है। हाउनेस बयान करना। अल्लाह ताला सुनता है, सुनता कैसे है, ये नहीं बोलना है। अल्लाह ताला देखता है, देखता कैसे, ये नहीं बोलना है। अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, कैसे, ये नहीं बोलना है। कैफियत बयान नहीं करते हम। उसकी हाउनेस है, लेकिन हम नहीं जानते कैफियत क्या है उसकी। नंबर दो, वो हो गया बगैर तकीफ वला तमसील। तमसील ना ही मिसाल देनी है। कोई मिसाल देता है, अल्लाह ताला सुनता है, बंदा भी सुनता है, मिसाल नहीं देनी है, क्योंकि वो अल्लाह है। देखिए, जो भी हम हमें रब के बारे में कैफियत आती है ना जहन में, जो भी हमारे जहन में कैफियत आती है अल्लाह ताला की सिफात के बारे में, अल्लाह ताला ऐसा हुआ, ऐसा होगा, वो हमें गलत आ जाती है, वो सही नहीं आ जाती, ये बात समझिए। क्योंकि हमें वो आ जाती है कैफियत मखलूक का मुशाहिदा करने के बाद। हम क्या है ना, इंसान, मखलूक, क्रिएशन। हम क्या देखते हैं दिन भर? क्रिएशन को ही इंसान दिख रहा होता है। फिर हम देते हैं वही मिसाल अल्लाह के साथ। हम सोचते हैं कि हमने खाली क्रिएशन का मुशाहिदा किया है, हम देंगे मिसाल अल्लाह ताला के साथ। ये गलत है ना ये? क्योंकि जो भी कैफियत हमारे जहन में अल्लाह के बारे में आ रही है, अल्लाह ताला वैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ मखलूक का मुशाहिदा किया है, हमने खालिक को नहीं देखा है। तो हम करते कियास अल्लाह पे मखलूक को देख के, जो गलत हो जाता है। मोहम्मद इब्न नासिर अल बर्राक ने ये चीज़ लिखा है अकीदत तहाविया के शरह के अंदर। तो तमसील क्या होता है? मिसाल बयान देना, पैराबल इस्तेमाल करना, एग्जाम्पल देना। ठीक है। सिमिलैरिटी देना अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स को बंदों के एट्रीब्यूट्स के साथ, ये भी गलत है, ये भी गलत है। काफिर बनता है इंसान, काफिर इस चीज से। नंबर च- कोई बोलेगा अल्लाह ताला वैसे अर्श पे है जैसे इंसान कुर्सी पे बैठता है, वो काफिर है, वो इस्लाम के बाहर है। मुखरिजुन अनिल मिल्लह। उसके बाद तीसरा, बगैर तफवीज, तफवीज भी नहीं करनी है, तफवीज। उनको बोलते हैं मुफव्विदा, उन कैटेगरी को, उन ग्रुप्स को। मुफव्विदा। मुफव्विदा वो है जो बोलते हैं कि हमें पता नहीं मीनिंग, रहमान है हाँ मानते हैं। रहमान का मतलब क्या होता है वो हम जानते नहीं है, ये गलत बात है। पता है रहमान का मतलब है रहम करने वाला। मुफव्विदा बोलते हैं तफवीज करना है, जो पुश अराउंड अल्लाह ताला से। ये स्पुर्द कर देना इसका मीनिंग अल्लाह ताला को, ये सही बात नहीं है। हमें मीनिंग पता है, उसी हिसाब से हम मीनिंग समझते हैं। तफवीज भी नहीं करनी है। और तातील भी नहीं करती है। तातील का मतलब होता है इनकार कर देना, तातील। और मुअत्तिला बोलते हैं इनकार करने वालों को, मुअत्तिला, इनकार करने वाले जो ग्रुप है एक। जैसे इनको बोलते हैं मुमस्सिला, क्या बोलते हैं? मुमस्सिला। तमसील, मिसाल देने वाले। तातील करने वाले इनको बोलते हैं मुअत्तिला। इनकार करने वाले अल्लाह के सिफात की, जो बोलते हैं अल्लाह सुनता ही नहीं है, वो देखता ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं करता है, रहम ही नहीं करता है, वो भी कुफ़ार है। हम कुफ़ार, मुअत्तिला हम कुफ़ार, बिला शक वो कुफ़ार है। उसके बाद तफवीज। अच्छा, तफवीज का मतलब होता है, मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, रहमान का मतलब क्या होता है? रहम करने वाला। मैं बोलता हूँ नहीं, रहमान तो मैं मानता हूँ, अल्लाह ताला रहमान है, लेकिन जो मतलब इससे आ जाता है कि अल्लाह ताला रहम करने वाला है, ये मैं नहीं मानता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इसका मीनिंग मैं अल्लाह ताला को सुपुर्द कर देता हूँ। आई डोंट नो दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रहमान, तो मैं ये बपशरा भी अल्लाह ताला से ही, मैं ये अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दूंगा। ये भी सही नहीं, गलत है। हम बोलते हैं रहमान का मतलब पता है, रहम करने वाला। वदूद का मतलब पता है, मोहब्बत करने वाला। रऊफ़ का मतलब पता है, बड़ा मेहरबान, मेहरबानी करने वाला। रऊफ़ और रहीम, रहम करने वाला। तो मुफव्विदा क्या बोलते हैं? हम मानते हैं ये सिफात, बस नाम मानते हैं, नाम का मीनिंग नहीं मानते इन शॉर्ट। माने कोई मुझे बोल रहा है हिशाम,
मैं मानता हूँ तुम हिशाम हो, वो बस बोलता है मैं हिशाम हूँ। हिशाम का मतलब होता है जेनरस, खर्च आने वाला मतलब। अब वो ये नहीं मानता कि मैं खर्च आने वाला हूँ, बस बोलते हैं आप हिशाम हो, हाँ मैं मानता हूँ। वैसे इंसानों के नाम ऐसे नहीं होते। देखिए इंसानों के नाम होते हैं ना, जरूरी नहीं कि इंसान के नाम का मतलब जैसा होगा वैसे इंसान भी होंगे। किसका नाम होता है सालेह, किसी इंसान का नाम सालेह होता है, सालेह क्या होगा, नेक इंसान। लेकिन वो तालेह होता है, वो बुरा इंसान होता है। कोई लड़की होती है उसका नाम क्या होता है सालिहा, क्या हो गया सालिहा, अच्छी लड़की। लेकिन वो होती है तालिहा, अच्छी नहीं होती है, बुरी लड़की होती है वो। ऐसे होता है। तो इंसानों के नाम की गारंटी नहीं होती है कि इंसानों के नाम का मीनिंग वैसे, इंसान के नाम का जो मीनिंग हुआ ना इंसान वैसा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह के जो नाम है, अल्लाह ताला वैसा ही है जिस अल्लाह ताला के नाम है, ये समझ रहे हैं। मुफव्विदा, मुफव्विदा क्या बोलते हैं, मुफव्विदा बोलते हैं कि हमें स्पुर्द कर देना है मीनिंग अल्लाह ताला की ओर, या हमें बोलना है मीनिंग आई डोंट नो द मीनिंग। गलत बात है, वी नो द मीनिंग बट वी डोंट नो द हाउनेस ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स। हम जानते हैं माना लेकिन कैफियत नहीं जानते हम अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात की। तो ये समझना है, अकीदे की मसाइल बहुत पेचीदे मसाइल होते हैं, बहुत बारीकपन से सोचने समझने पड़ते हैं। हमें यही पढ़ रहे थे हम, हाँ उसके बाद उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, सुम्मा रददनाहु, उसके बाद हम इसको रिटर्न करेंगे इंसान को अस्फल साफिलीन, लोवेस्ट ऑफ द लो इंसान चाहते हैं। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर इसे नीचों से नीचा कर दिया, फिर रिटर्न कर दिया इस इंसान को, लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट किया है इंसान, नीचों से भी नीचा कर दिया गया इंसान को। ठीक है, ये इशारा है कि अर्दल उम्र, बहुत जब इंसान बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, अर्दल उम्र की तरफ इशारा किया गया है, जिसमें जवानी और कुव्वत के बाद बुढ़ापा और ज़ुअफ़ आ जाता है। इंसानी अक्ल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जहन बच्चे जैसा हो जाता है बूढ़ों को, है ना, बच्चे बन जाते हैं वापस से वो। तो बाज इससे किरदार का सुफला लिया है मुराद, यानी कि जो इंसान है जिसमें मुब्तला होकर इंसान इंतहाई पस्त और सांप बिच्छू से भी ज़्यादा गिया गुजरा हो जाता है। और बाज़ ने इसे ज़िल्लत रुसवाई से का अजाब वो मुराद लिया है। ठीक है, हाँ कुछ यहाँ पता क्या बोला है, कुछ यहाँ बोला है कि इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से इनहराफ करके अपने आप को अहसन तकवीम के बुलंद रुतबे और एजाज़ से, अशरफुल मखलूक़ात के बुलंद एजाज़ से लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट जहन्नम में जाता है। ठीक है, असफल साफरीन जहन्नम में जाता है, जहन्नम के लोवेस्ट पोर्शन में जाता है, जो खतरनाक पोर्शन होता है जहन्नम का, लोवेस्ट पोर्शन खतरनाक होता है। हाँ बिल्कुल, डिनाइंग द सिफात ऑफ अल्लाह येट एक्नॉलेजिंग द नेम ओनली, हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम जाएंगे नीचे। मतलब वो ऐसे मुफाविता ऐसे बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा कुरान नाजिल किया जो हम समझ नहीं पाएंगे। देखिए दिमाग इतना ख़राब हो गया होता है ऐसे। कुरान अगर है तो इसके अल्फाज का जो मीनिंग का वो समझना, मीनिंग क्या है इसका, तब जाके हम समझ पाएंगे इसका मीनिंग ये है, फलानी मीनिंग ये होगा। वो बोलते हैं अल्लाह ने ऐसा कलाम भेजा जो हम समझ नहीं पाएंगे, इनके हिसाब से अल्लाह ताला यही बोलता है। अल्लाह ताला क्यों भेजेगा ये वैसा कलाम जो हम समझ नहीं पाएंगे। वलक़द यस्सरना क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, व तहकीक हमने नाजिल कर दिया है जिक्र, तज़कीर, रिमाइंडर, बस है कोई रिमाइंडर लेने लेने वाला, नसीहत अखज़ करने वाला, नसीहत हासिल करने वाला। कुरान तो आसान है समझना। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय वो लोग जिन लोगों ने ईमान लाया, व अमिलु सालिहात, और नेक अमाल की, फ़लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अजर होगा जो ना ख़त्म होने वाला अजर होगा, जो हमेशा का अजर होगा, जो कभी ख़त्म नहीं हो जाएगा वो अजर, कि वो अजर अल्लाह देने वाला है जो खुद इटरनल बीइंग है, जो हमेशा बाकी रहने वाली ज़ात है। हुवल अव्वल वल आखिर फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिदीन, बस कौन सी चीज़ तुम्हें तकज़ीब पे उभारती है कि तुम डिनाई करते हो इसके बावजूद भी यौमुद्दीन को, जज़ा के दिन को, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया कर दिया है वो तुम्हारा हिसाब भी एक दिन लेगा, तुम क्यों इनकार करते हो उस हिसाब का। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, बस तेरे क्या मस्त शुक्राना ईमान की, ऐसे लिखा है। फिर क्या मसला हो जाता है कि इंसान कहता है डिनाई जजमेंट डे को, जबकि इतना ज़्यादा वाज़ है ये, और दावत फितरत को आ जाती है अल्लाह ताला के की दावत जो अपने कुरान के ज़रिए से भेजी होती है। तो क्यों नहीं इंसान गौर करता है अपने आप पे और सोचता है कि जिस ज़ात ने मुझे पैदा किया है एक मकसद के तहत मुझे पैदा किया होगा। मेरी लाइफ एब्सर्ड नहीं है, मेरी लाइफ मीनिंगलेस नहीं है। माई लाइफ हैज़ अ मीनिंग, इट हैज़ अ पर्पस, अ डिवाइन पर्पस, एन अल्टीमेट पर्पस।
तो ये एक अक्ल वाला ये सोचता है इसके बारे में, जो फितरत सलीम पे होता है और अक्ल सलीम पे ऐसा इंसान होता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या नहीं है अल्लाह ताला सब हाकिमों का हाकिम, मोस्ट जस्ट ऑफ द जजेस। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, एक जजमेंट डे होगा, फैसला का दिन होगा एक दिन, जो बुरा जिसके साथ हुआ होगा उससे वो अच्छा हो जाएगा वहाँ पे, जिसके साथ जो अच्छा हुआ होगा उससे वो उसे क्या हो जाएगा, मतलब जिसने जो बुरा किया होगा उसको अपना अजर लेना पड़ेगा, बुरा अजर। जिसने जो अच्छा किया उसको अच्छा अजर मिल जाएगा। या दुनिया में अगर हमने बोलेंगे कि अगर हम आखिरत पे ईमान नहीं लाएंगे तो हम रहेंगे परेशान ज़िंदगी के अंदर। तो हम बोलेंगे कि कोई जजमेंट है ही नहीं, अल्टीमेट जस्टिस मिल ही नहीं रही है। कुछ लोग आगे जा रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग अय्याशी में रह रहे और हम मुसीबतों में रह रहे। गलती क्या है हमारी कि हम अफ्रीकन ट्राइब्स में पैदा हो गए और हमें खाना नहीं था? हमारी गलती क्या है? कोई जजमेंट ही नहीं है, कुछ फैसला सही नहीं हो रहा है, सब गलत ही हो रहा है हमारे साथ। तो इसलिए आखिरत है ना, क्योंकि तब सब सही हो जाएगा। इसलिए जो है ना, जो दुनिया का जो है ना ये कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर, उसको बोलते हैं कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर, वो खुद ही बोलता है कि नहीं आखिरत होनी ही चाहिए। ठीक है, तकाजा करता है वो इस चीज़ का, तकाजा ही बन जाता है दुनिया के जो दुनिया में जो इंसान रहता है ना, वो जो चीज़ें हो जाती है इंसान के साथ, ये तकाजा बन जाता है कि इसकी आखिरत होनी चाहिए। अगर बुरा हो रहा है, अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ? अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा करने के बाद बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है? या बुरा करने के बाद अच्छा क्यों होता है कुछ कुछ लोगों के साथ? इसीलिए क्योंकि तकाजा ही बन जाता है ये सब इनजस्टिस, कि एक अल्टीमेट जजमेंट डे होना चाहिए जिस दिन फैसला हो जाएगा। और वही उस दिन फैसला लेगा जिसने दुनिया बनाई है सारी, अल्लाह ताला। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अब क्या सूरत अलक। अलक बोलते किसको? अलक बोलते, हम देखेंगे नीचे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट नाजिल शुदा आयत कुरान की कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, है ना? जब आप पता ही है इसके बारे में क्या क्या है। जब नबी के समझते थे वो कारी हरा में थे, तो इबादत में मसरूफ थे वो, फर्स्ट ने क्या बोला? कहा कि पढ़िए या रसुल, इक़रा, आप पढ़िए। आपने क्या बोला? मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने फिर से कहा पढ़िए या रसुल। उसने फिर से कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर से कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़िए या रसुल। आपने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसके बाद उन्हें पढ़ा क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ तू अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो पहली आयत कुरान की, पढ़। तो इतना ज़्यादा एक मुसलमान को पढ़ना चाहिए, हर चीज़ पढ़ना चाहिए। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस्लाम में पढ़ने की, कि पहली आयत स्टार्ट ही होगी पढ़ने से, इक़रा, पढ़ो। ठीक है, इक़रा, इक़रा, मोड़ा पढ़ना, इक़रा नहीं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पढ़ो तुम अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया हर चीज़। उस रब का तुम नाम लो जिसने हर चीज़ पैदा की है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ठीक है, उसके बाद खलकल इंसान मिन अलक, उसने पैदा किया इंसान को अलग से। इसने यहाँ पे क्या लिखा है? क्लिंगिंग सब्सटेंस। अलग को इसने यहाँ पे क्या लिखा है? क्लिंगिंग सब्सटेंस। उसने पैदा कर दिया इंसान को क्लिंगिंग सब्सटेंस से। यहाँ तर्जुमे बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि अरब में ना, अरब करते इस्तेमाल अलग का लफ्ज़ बहुत जगहों पे। देखिए, पहली बात, अलग बोलते हैं ब्लड क्लॉट को। किसको बोलते हैं? ब्लड क्लॉट को। ब्लड ब्लड क्लॉट क्या बोलते हैं उर्दू में? खून का लोथड़ा, खून का लोथड़ा, ब्लड क्लॉट। अब पता है, जिस कुरान में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में आ गया ना उस आयत में, जहाँ पे पहले अलका के बारे में आ गया है। अलका, हाँ पहले आ गया अलका, क्या आ गया? अलका। पहले पता है कि ना, स्पर्म ओवम का फ्यूजन, नुतफा। स्पर्म प्लस ओम का फ्यूजन, उसको बोलते हैं नुतफा, जाइगोट। नुतफा क्या होता है? जाइगोट। उसके बाद देखिए, हमें पता है कि नुतफा, हाँ देखिए, हमें गलती गलती हो जाती है। हमें पता है कि नुतफा मतलब होता है स्पर्म, ये गलत तर्जुमा है। नुतफा मतलब होता है मेल गमीट या फीमेल गमीट, कोई भी, कोई सा भी। ठीक है, दोनों होते हैं नुतफे के तर्जुमे, दोनों हो जाता है। ठीक है, माँ और रजुल अविल मरअ, मर्द का पानी या औरत का फ्लूइड, दोनों उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो नुतफा मतलब होता है जाइगोट, जब होता है दो पानियों का फ्यूजन, ओके, फ्यूजन हो गया जाइगोट। फिर होता है अलका स्टेज, क्या होता है? अलका। अलका के होते हैं तीन तर्जमे। नंबर वन, ब्लड क्लॉट। क्योंकि एक होता है ना, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हेगमैनोजेनेसिस, शायद बोलते हैं, हाँ, हेगमैनोजेनेसिस। हेगमैनोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, वो बन जाती है बस जाइगोट के बाद ही, है ना? पहले होता है जाइगोट, ठीक है। फिर होता है टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, गैस्ट्रुला मोरलो गैस्ट्रुलेशन हो जाती है, मोरलेशन हो जाती है। फिर
ہے نا, انسان بن جاتا ہے پورا آہستہ آہستہ. لیکن پھر کیا ہو جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد ہی, یہ ہے گوینوجینیسس, فارمیشن آف بلڈ ویسلز ہو جاتی ہے انسان کے اندر, ایمبریونک اسٹیج میں ہی. اسی کو بولتے ہیں علقہ. کیا بولتے ہیں؟ علقہ, بلڈ کلوٹ. عرب کرتے ہیں استعمال بلڈ کلوٹ کے لیے علقہ کا لفظ, یا عرب کرتے ہیں استعمال علق کا لفظ لٹکانے کے لیے. اسلام بولتے ہیں تعلق. تعلق کیا ہوتا ہے؟ لٹکانا. تعلق بولتے ہیں لٹکانے کو. میں بولتا ہوں کہ مجھے تعلق ہے اس انسان کے ساتھ, یعنی کہ لٹکا ہوا ہے انسان میرے ساتھ. ٹھیک ہے, جیسے حدیث میں آ گیا ہے من علق تمیمتن, جس نے لٹکایا تعویذ کو, فقد اشرک, اس نے شرک کیا. تمیمہ کس کو بولتے ہیں؟ من علق تمیمتن, جس نے تمیمہ لٹکایا. ایمولٹ نا, ایمولٹ, یا کوئی بھی چیز, وہ چیز جو انسان لٹکاتا ہے, ٹھیک ہے. جس نے لٹکایا تعویذ فقد اشرک, اس نے شرک کر دیا. تو وہاں پہ کیا گیا؟ من علق, علق يعلق تعلیقا, بولتے لٹکانے کو. تعلق بولتے ہیں نا, تعلق, کنیکشن. ادر کنیکشن تب جب کچھ لڑکی ہوئی ہوتی ہے کس کے ساتھ, اس کو بولتے ہیں کنیکشن. تو تعلق ایسے بن گیا, ٹھیک ہے. اب کیا بتا ہوگا کلنگنگ سبسٹینس ہوتا ہے نا, مطلب بچے کو ہوتی ہے نا وہ, کیا اس کو بولتے ہیں, امبلیکل کارڈ نا. امبلیکل کارڈ, یہ نا, یہ پلیسنٹا جو ہوتا ہے بچے کو, وہ ہوتا ہے نا ماں کے ساتھ اٹیچ. تو ویسے ترجمہ کرتے ہیں کلنگنگ سبسٹینس, اٹیچ ہوتا ہے امبلیکل کارڈ کا بچے کا ماں کے ساتھ. جنم کاٹتے ہیں بچے پیدا ہو جاتا ہے. ہو گئی یہ دو چیزیں. تیسرا ترجمہ اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے, یہ تو کیا بلڈ کلوٹ کلنگنگ سبسٹینس. ہاں ہاں, اور بولتے ہیں الگ, بولتے ہیں لیچ کو. کس کو بولتے ہیں؟ لیچ کو. برابر ہوتا ہے ایمبریونک سٹیج میں نا یہ, ہوتا ہے ایمبریو کیسا, لیچ جیسا ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا. دیکھیے مجھے بنانا آئے گا ہی نہیں پہلے. کیا بنا رہا ہوں میں؟ تھوڑا ایسے ہوتا ہے نا بچہ, ہوتا ہے ان دا فارم آف لیپس, تھوڑا وہ بینڈ ہو گیا ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے نا بچہ, پھر کھل جاتا ہے ایسا 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 ایسا, بڑا ہو جاتا ہے, چلتا بھی ہے اچھے سے. میں وہ دکھاؤں گا, ایک منٹ, اس نے یہاں پہ لکھا ہوگا. ام، دیکھیے اس نے یہاں پہ لکھا ہے سارا کچھ نا, یہ اسٹیج وائز سارے. آہ، ہاں یہ دیکھیے آپ, کون سی بات آئی تھی, یہاں یہ والی دیکھیے. ثم جعلناه في قرار مكين. دیکھیے ہے نا, یہ تھوڑا ایسے بینڈ سا ہوتا ہے, انسان ایسے لی شیپ کا ہوتا ہے. دیکھیے قرآن میں آ گیا کیا, جعلناه نطفة في قرار مكين. پہلے تو انسان نطفے کی شکل میں ایک پلیس آف سیٹلمنٹ کی جگہ پہ. قرار مکین کیا ہوتا ہے؟ پلیس آف سیٹلمنٹ. ٹھیک ہے, اسپرم ڈراپ ان اے فرم, LODGING, لوجنگ. لیکن اس نے یہاں لکھا ہے اسپرم ڈراپ, اس نے ترجمہ صحیح نہیں کیا ہے. نطفہ مطلب ہوتا ہے کیا, چاہے فلوئڈ آف میل یا فیمیل. اس کے بعد پھر کیا ہے, ثم خلقنا النطفة علقہ, پھر بنتے ہیں نطفے سے کیا, علقہ, کلنگنگ کلوٹ. ابھی بول رہے تھے ہم علقہ. فخلقنا العلقة مضغہ, پھر بنتا ہے اسی علقہ کو مضغہ. مضغہ مطلب ہوتا ہے لمپ آف فلیش, مطلب ٹکڑا نا, ماس کا ٹکڑا, اس کو بولتے ہیں ایمبریونک فلیش. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد فخلقنا اس کو بولتے ہیں مایوجینیسس. کیا بولتے ہیں؟ مایوجینیسس, فارمیشن آف مسلس. اس کے بعد فخلقنا المضغة عظاما, پھر بنتا ہے اسی مضغہ کو, اس فلیش کو, اس لمپ کو, ایمبریونک لمپ کو بن جاتا ہے کیا, عظام, بونز. اس کے بعد فکسونا العظام لحما, پھر چڑھ جاتے ہیں بونز پہ کیا, اپنا ماس, فلیش. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر بن جاتے ہیں وہ پورا کریشن ہوتا ہے, کریٹ ایک انسان. فتبارک اللہ احسن الخالقین, بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. سوچنا کیسے بن جاتا ہے, پورا ایک انسان بن جاتا ہے, ٹانگیں نکل جاتی ہے, ہاتھ, انگلیاں, سب کچھ, آنکھیں. پھر دیکھتا ہے اتنا اتنا کمپلیکس انسان کیسے بن جاتا ہے گمیز کی فیوژن سے. سوچنا ہے انسان کو کیسے ہو جاتا ہے یہ سب کچھ وداؤٹ بلیڈنگ اے انٹیلیجنٹ ڈیزائنر. کیسے آپ پوچھتے ہو کہ اتنا انٹیلیجنٹ ڈیزائن بائی چانس خود ہی ہو رہا ہے, ماں کے بیٹے خود ہی پیدا ہو رہا ہے بچہ. کتنی حماقت کی بات ہے, جو انسان بولے گا خود ہی ہو رہا ہے وداؤٹ پرپزفل کریٹر یا ڈیزائنر. یہ خود ڈیزائن بن رہا ہے اندر سے, آنکھیں برابر اپنی جگہ پہ رہ رہی ہے, ناک بن رہی ہے. اب سوچتے ہیں کیسے انسان بن جاتا ہے پورا ماں کی ووم کے اندر. یہ سوچنا ہے انسان کو, عقل دنگ دنگ رہ جاتی ہے ان چیزوں, ان جگہوں پہ نا. اچھا اس کے بعد irrational mental to rational being. ہاں یہ بھی سمجھنا ہے. دیکھیے
कोई बोलते हैं एथीस्ट, बोलते हैं ऐसे ही बच्चा होता है पैदा माँ को, उसको माँ ही होता है क्रिएटर, ऐसे बोलते हैं वो। चलो अगर ऐसे ही मानेंगे उनके हिसाब से भी मानेंगे, चलो नहीं मानेंगे इंटेलिजेंट डिजाइनर पे, सब बोलेंगे बाई चांस सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी नहीं वो कर पाएंगे प्रूफ रैशनैलिटी कॉन्शियसनेस कहाँ से आ गई, यहाँ तो खत्म हो जाते हैं सारे। यहाँ कोई बचता ही नहीं है कोई। रैशनैलिटी कहाँ से आ गई इंसान में बताओ, और कॉन्शियसनेस कहाँ से आ गई इंसान में बताओ। अब इसके बारे में बोलते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में ना, ऐसे बोलते हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो क्या उसको बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, वहाँ पे होता है ना वो रिलीज एस्टाइल कोलिन, वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं रिलीज। तो फिर क्या होता है कि न्यूरॉन्स में जो होती है बन जाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से बन जाती है कॉन्शियसनेस। कैसे बन जाती है, मैं क्यों मानूंगा ये चीज़। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है, किससे बन जाती है, राउंड मैटर से बन जाती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि रैशनैलिटी कॉन्शियसनेस है ही नहीं जो मटेरियल चीज़ होगा, ये मैटर से कैसे बन सकती है। कैसे हो रही है इवॉल्व एक नॉन मटेरियल चीज़, एक मेटाफिजिकल एंटिटी कैसे निकल रही है फिजिकल एंटिटी से, मैटर से। जवाब दो मुझे इसका। यहाँ पे जवाब नहीं आ जाते कुछ भी नहीं। चाहे आप कुछ भी कहीं से भी ढूंढेंगे ना, कुछ भी रिसर्च करेंगे आप, दिन रात पढ़ेंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं आंसर। इसको बोलते हैं क्या, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे जवाब कुछ नहीं मिलता है चाहे इंसान कुछ भी करेगा। प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़नी चाहिए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। और यहाँ पे कोई जवाब नहीं मिल सकता है क्योंकि मेरे लिए कुछ कुछ ही बोलेंगे, साइंस साइंस लगाएंगे वहाँ का यहाँ बोलेंगे, एंड पे बोला ना कि आखिर मिलती कहाँ से। मैं आपको तब देता हूँ 10 रुपये जब मेरी जेब में 10 रुपये होंगे। जब मैटर के पास है ही नहीं रैशनैलिटी कॉन्शियसनेस तो वो देगा कहाँ से। पूरी यूनिवर्स ही आपको हो गई, लीजिए यूनिवर्स हाथ में आप। अब बताइए आप यूनिवर्स से कहाँ से दी मुझे कॉन्शियसनेस रैशनैलिटी, पूरा मैटर आपको हो गया, दुनिया के सारे एटम्स ही आपको हो गए। बताइए कहाँ से आ गई रैशनैलिटी कॉन्शियसनेस। तो जब तक हम यूनिवर्स से बाहर नहीं निकल जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे कि एक ट्रांसेंडेंट बीइंग है जो यूनिवर्स के बियॉन्ड है, उसने हमें रैशनैलिटी दी है, कॉन्शियसनेस दी है, तो तब तक हम नहीं रख ना, तब तक हमें आंसर नहीं मिलेगा। हमें कहाँ से आ गई ये अक्ल व शऊर, उस मादे से जो जो अक्ल व शऊर से खाली है। सच में कितना बड़ा आर्गुमेंट है, अल्लाह की कसम। यहाँ तो जवाब ही नहीं आ जाता है किसी को, कुछ भी नहीं, अल्लाह की कसम यहाँ जवाब नहीं आ जाता है किसी एथियस्ट को, बियॉन्ड और इंटेलेक्ट टू आंसर इट। यहाँ पे अकली बात हो जाती है इंसानों की, यहाँ पे तो यहाँ पे जवाब नहीं मिल सकते ना। सीधे यहाँ पे वो आयत होती है फिट, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसरून, तुम्हारे अपने नफ्सों के अंदर ही क्या निशानियाँ हैं, क्या तुम नहीं देखते हो। तो अपने आप में देखना है, अपनी रैशनैलिटी पे गौर करना है। मुझे अकल है, मैं सोच पा रहा हूँ, मुझे कॉन्शियसनेस है, मुझ में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, मैं सोच पाता हूँ आफ्टर लाइफ के बारे में। ये सब चीज़ें मुझे कहाँ से आ गई, ये सब चीज़ें जहन में। मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं देख रहा हूँ आसपास सराउंडिंग को फील कर रहा हूँ। ऐसे कैसे हो रहा है, ये मुझे कहाँ से आ गई दो चीज़ें। मुझे याद है जब मैं था ना कुछ टाइम पहले, आज से 3-4 साल पहले, तो मुझे थोड़ा बहुत दिमाग में एक शक हुआ है अल्लाह ताला के बारे में।